Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, various draft of applications, over 125 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical, non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is आज का विषय है आर्किटेक्ट, सिविल रिपेयर्स, अपॉइंटमेंट्स, प्रोसीजर्स एंड ड्यूटीज. So, architect, we are covering only basic points relating to appointment and duties of architect. Let us say AR, उसका डेजिग्नेशन है. वैसे जैसे डॉक्टर का कैसे DR लगाते हैं, वैसे architect is supposed to be putting the word AR before his name. Since the topic is very vast and cannot be covered in about a 30-minute session, however, today's session will cover almost all basic and compulsory points. Typically, there is no government prescribed specific legal provision to appoint architect. However, since now societies are classified as autonomous functioning body under section 2 bracket 27, society general body can legally appoint AR via proper prior notice agenda for specific purposes only in SGM or AGM under section 72 as the GB decision under section 72 is supreme. Architect appointed under section 72 is classified as an officer of the society under section 2 bracket 20 and section 154B1-19, and it shall have his appointment, AR's appointment will be a proper legal status. MC has no jurisdiction to appoint आर्किटेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर्किटेक्ट को अपॉइंट करना है तो आपको आर्किटेक्ट सिर्फ और सिर्फ जनरल बॉडी में करना है. वो भी उसके लिए पहले से एक नोटिस एजेंडा होना चाहिए टू डिस्कस एंड डिसाइड टू अपॉइंट आर्किटेक्ट फॉर so and so purposes. It might be major civil repairs, it might be for redevelopment, it might be for conveyance, it might be for various other illegalities, amalgamations, extra constructions, encroachments, वगैरह वगैरह वगैरह. There are various categories of architects. उदाहरण के तौर पे सिविल आर्किटेक्ट है, कमर्शियल आर्किटेक्ट है, लाइटिंग आर्किटेक्ट है, इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्ट है, सो एंड सो. टुडे वी आर डिस्कसिंग, आज हम चर्चा करते हैं सिविल आर्किटेक्ट की.
बड़े सोसाइटी, छोटे सोसाइटीज में खास जरूरत नहीं होती है, लेकिन बड़े सोसाइटीज में चूंकि ज्यादा फ्लैट्स हैं तो इंटरनल चेंजेस, एनक्रोचमेंट्स, इलीगलिटीज होती रहती है। पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, वो तो ऑलरेडी कई लोगों ने इंक्रोचमेंट कर ही रखा हुआ है, और उसका समाधान कैसे निकाले उसके बारे में चर्चा करते। In large, or let us say big societies, AR is as important as a legal advisor, as an accountant, as a statutory auditor, or let's say as an internal auditor also. मतलब जहां आपने लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया है, जहां पे आपने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया है, आपने अकाउंटेंट अपॉइंट किया है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया है, वैसे बड़ी सोसाइटीज में आर्किटेक्ट भी अपॉइंट होना चाहिए। कारण क्या है, चर्चा करते हैं। Periodical checkup of building by architect is as equivalent to periodical health checkup by a doctor or by your dietitian. We go to a gym, हम लोग जिम जाते हैं कसरत करने वगैरह के लिए, अपनी बॉडी को सिक्योर करते हैं, फ्यूचर में तकलीफ ना हो उसके बारे में हम छोटा मोटा सिक्योर के लिए जिम जाते हैं। सिमिलरली आर्किटेक्ट की स्क्रूटिनी या इंस्पेक्शन रिपोर्ट हेल्प्स इन सिक्योरिंग आवर बिल्डिंग्स। आर्किटेक्ट स्क्रूटनी करता रहता है, इंस्पेक्शन करता रहता है, रिपोर्ट आती है, उसको मैनेजिंग कमेटी में डिस्कस करते हैं, मैनेजिंग कमेटी उसको जनरल बॉडी में एजेंडा के मार्फत डिस्कस करती है। इस तरह हम अपनी बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टिपिकली मेजर कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स या जो बड़े होटल्स हैं, दे एंगेज आर्किटेक्ट सर्विसेज, ईयरली सर्विस चलता रहता है उनका, to secure and maintain the buildings, which actually saves future costs and enhances value of property. जैसे आपकी बड़ी बिल्डिंग है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, 20 माले की कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, 20 माले का होटल है, पीरियडिकली कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता रहता है, लीकेज देखना है, डिजाइन चेंज करना है, फर्नीचर की शिफ्टिंग करना है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट, बट एन आर्किटेक्ट इज एन ओवरऑल पर्सन who guides all these things. तो जब ये प्रॉपरली पेंटिंग हो गई, प्रॉपरली रिपेयर हो गया, प्रॉपरली टाइमली प्लास्टरिंग हो गया, तो प्रॉपर्टी का फ्यूचर जो बड़ा जो खर्चा होना है वो अवॉइड हो सकता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू भी एनहांस हो जाती है। अगर आपने बॉम्बे में कई बिल्डिंग्स देखी होंगी, 20-20, 30-30, 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन जानबूझ के टोटली इग्नोर किया जाता है वैसी बिल्डिंग को, और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। आप इग्नोर करोगे शरीर को, वैसे अगर आप बिल्डिंग को इग्नोर करोगे तो बिल्डिंग की हालत खराब होती ही रहने वाली है। लीकेजेस से क्या खराब होती है, इंक्रोचमेंट से, कई अदर रीजन से। An architect should be technically qualified and compulsorily registered under Architects Council, under Architects Act। जिसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का मेडिकल काउंसिल है, उसमें उसको रजिस्टर होना है। सेम विथ लॉयर्स का भी है, बार काउंसिल में रजिस्टर होना है। वैसे आर्किटेक्ट का भी, वैसे इंजीनियर का भी है। तो अगर उसके पास उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते हो, और उसके रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। आर्किटेक्ट शुड बी अपॉइंटेड ओनली ऑन रिटेनरशिप बेसिस। क्वार्टरली रिटेनर कर लो, हाफ ईयरली, ईयरली, और टिल further notice. But an architect cannot be appointed on salary basis. Architect fee amount is to be paid equally by all the members and to be calculated properly under the yearly budget projection statement under section 75. बजट प्रोजेक्शन स्टेटमेंट है सेक्शन 75 में। उसमें लिखा जाता है कि हमारे ये सारे खर्चे होंगे, लीगल एडवाइजर के भी, इंटरनल ऑडिटर के भी, ऑडिटर के भी,
अभी इस समय हम एक और चीज जोड़ते हैं, आर्किटेक्ट. Architect appointment helps in large savings during major repair works, major civil repair works, provided the appointed architect periodically does inspection of buildings. An experienced architect will be able to give report about the used up, पहले का जो FSI यूज अप कर चुके हैं, और या तो आपका प्लॉट बड़ा है और आज के दिन पे कितना FSI अवेलेबल है, वो आर्किटेक्ट आपका लेआउट प्लान स्टडी करके बीएमसी का जो एग्जिस्टिंग प्लान है आपकी बिल्डिंग का, जैसे मानो आपका 50,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट होगा, उसमें एक बिल्डिंग बनी हुई है. उस जमाने में 50 बरस पहले आपने FSI 1 यूज किया होगा, तो बाकी का प्लॉट खाली पड़ा हुआ है. उस समय आपने बोला कि इसको ओपन एरिया रखते हैं, खेलने का मैदान बनाते हैं, शादी वगैरह के लिए रेंट आउट करेंगे वगैरह वगैरह. लेकिन क्या उसका FSI एडिशनली अवेलेबल है आज की तारीख पे, आज के कानून के हिसाब से? और अगर है तो इसकी रिपोर्ट आपको एक तजुर्बेकार आर्किटेक्ट दे पाएगा आज के दिन का. Architect can also give you details about possible additional constructions using available additional FSI या TDR, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स जिसको कहते हैं, and regularize existing deficiencies, lacunas or illegal additions etc. कई लोग, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, कई लोग एनक्रोच कर लेते हैं, और एनक्रोच कर लिया तो मतलब FSI यूज हो गया. जैसे आपकी बालकनी है, आपने प्रॉपरली उसको दीवार वगैरह बना के एनक्रोच कर लिया, पता ही नहीं चलता, रूम के अंदर भी ले लिया, वो बालकनी फ्री ऑफ FSI था उन दिनों. आज के दिनों पे क्या पोजीशन है, तो FSI यूज करना है, तो ये आर्किटेक्ट बोल सकता है कि भाई आपका FSI अवेलेबल है, आप इस तरीके से इसको इसकी जो ये डिफिशियंसी इसको रेगुलराइज कर लो. Architect can analyze and calculate various defects in the building and suggest remedial or corrective measures that are available under BMC, under MRTP, under Fire Act, under NBC, National Building Code. तो ये सारे कानून के अंदर में इतने सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वो ये बता पाएगा कि आपके बिल्डिंग में ये डिफेक्ट है. समझे 20 बरस पहली बिल्डिंग बनी हुई है, आपने अपनी बिल्डिंग ले लिया, उसने परमिशन लिया है 7 माला बनाने का, लेकिन बना डाला है उसने 10 माला. ओसी नहीं है, ओसी मिलेगा भी नहीं, या अथॉरिटी से मिलके उसने मैनेज कर लिया, आपको अपना फ्लैट में रहना था, आप चले गए अंदर. क्या इसको करेक्ट किया जा सकता है? सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, सब्जेक्ट टू वेरियस पैरामीटर्स, आप इसे कलेक्ट कर सकते हो. उसका कानून जो जो लागू पड़ता है वो है BMC एक्ट, MRTP, फायर एक्ट और नेशनल बिल्डिंग कोड. कई पुरानी बिल्डिंग्स हैं और कई नई बिल्डिंग भी है. मेजॉरिटी 50% से ज्यादा पुरानी बिल्डिंग को ओसी है ही नहीं. ओसी मीन्स ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट. और कई नई बिल्डिंग है आज की तारीख पे भी, उसको भी ओसी नहीं है. रेरा बोलता है कि ओसी लाना जरूरी है, पर फिर भी कई बार इग्नोर कर दिया जाता है. बिल्डर बोलता है पैसा नहीं है, इनकम्प्लीट कर देता हूँ बिल्डिंग, फाइलिंग नहीं करता है, कंप्लायंसेस नहीं करता है, वगैरह वगैरह. So new buildings or old buildings may not have occupancy certificate for various reasons. उदाहरण के तौर पे वायलेशन ऑफ FSI किया होगा, यानी एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर दिया, नॉन कंप्लायंस ऑफ FSI कर दिया, एक्सेस बिल्टअप कर दिया, गैर कानूनी तरीके से एडिशंस कर दिया, बिल्डर आधा अधूरा बिल्डिंग को छोड़ के भाग जाता है. All these things can be rectified, remedied using various parameters under MRTP, BMC and fire laws.
जो आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा वो पीरियडिकली वे सर्कुलर्स इश्यू करते रहते हैं, डायरेक्टिव्स इश्यू करते रहते हैं। ये सबको कंसिडर करने के बाद में आप काफ़ी कुछ रेगुलराइज कर सकते हैं। और architect can easily, services can be easily used to obtain OC and regularization of various defects in your building. बायलॉज में आपको पता होगा कि सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड कैलकुलेशन का अरेंजमेंट है। सिंकिंग फंड 0.25% लेना है और रिपेयर फंड 0.75% लेना है। किस चीज़ का लेना है? ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का लेना है। तो आर्किटेक्ट का रिपोर्ट लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है, which helps in revisiting the sinking fund and repair fund calculations and creating a very healthy fund for futuristic major repair, paints and other civil works. जैसे उदाहरण के तौर पे आपका बिल्डिंग 40 बरस पुराना है, सिंकिंग फंड उस जमाने का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिया, लेट अस से 1980। तो 1980 में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 200 to 500 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द एरिया। तो आपने उस समय का ले लिया। बिल्डिंग का भी डिप्रिसिएशन भी हो रहा है, आपका नॉन स्टॉप डिप्रिशिएट हो रहा है। डिप्रिशिएशन का मतलब पुरानी बिल्डिंग हो रही है, छोटा मोटा क्रैक्स आ जाते हैं, लीकेजेस हो जाते हैं, पेंट खराब हो जाता है। लोग घर में अपने कुछ भी फर्नीचर बनाते हैं, कुछ भी एडिशन कर देते हैं, बालकनी इंक्लूज कर लेते हैं, नीच एरिया है, गार्डन एरिया वगैरह काफी कुछ करते रहते हैं। तो जब आपका एआर रिपोर्ट के बेस पे आपका लेटेस्ट डेट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिलेगा, तो सोसाइटी को क्या चाहिए, जैसे बायलॉ में लिखा है मिनिमम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम 0.25% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। वो आप मिनिमम वर्ड देखिए, मिनिमम को आप 0.35 भी कर सकते हैं, 0.45 भी कर सकते हैं, जो भी आप मर्जी है कर सकते हो। लेकिन एक जनरल बॉडी नोटिस एजेंडा के अंतर्गत ही आपको जस्टिफिकेशन देना है कि मुझे सिंकिंग फंड क्यों बढ़ाना है, रिपेयर फंड क्यों बढ़ाना। तो आपको ये बोलना है कि भाई हमारी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सर्टिफिकेट है वो 40 बरस जुना है, वो वाले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आज मेरी बिल्डिंग रिपेयर नहीं हो सकती है। पेंट करना है, इतना ढेर सारा पैसा लगने वाला है। एक 10 माले की बिल्डिंग होगी तो भी उसको पेंट करने के लिए टोटली अंदर बाहर वगैरह वगैरह, पेंट खाली ऐसा ही नहीं है कि भाई ब्रश लिया और पेंट कर दिया। छोटा मोटा क्रैक्स भरना पड़ता है, प्लास्टर रिपेयर करने पड़ते हैं, पहले लीकेजेस निकालने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स देखनी है, कई चीजें होती है। तो एक 10 माले की बिल्डिंग का टिपिकल पेंटिंग और मिसलिनियस रिपेयर कॉस्ट लगभग 1 करोड़ रुपीस हो जाता है मुंबई सबर्ब्स के आसपास में। लेकिन अगर आप ये सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड रिविजिट करते हैं बेस्ड ऑन द आर्किटेक्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो वही हिसाब से आप अपना सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड का कलेक्शन एडजस्ट कर सकते हैं। और जब फाइनली 1 करोड़ का खर्चा आता है कोई बड़ा मेजर सिविल रिपेयर करने के लिए, पानी की टंकी लीकेज हो रही है ऊपर से, रिपेयर नहीं हो सकता, तो ये करना है, तो वो करना वगैरह, तो उसमें बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। तो उस समय अगर आपके पास में सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, रिजर्व फंड वगैरह में अच्छा खासा पैसा जमा है जो आज के दिन पे नहीं है, तो आप मेंबर के पास जाते हैं कि भाई अभी 1 करोड़ रुपीस खर्चा करना है सिंकिंग फंड में, तो अपने पास खाली 5-10 लाख रुपए ही पड़ा हुआ इतने 40 सालों से, तो आप सबको इतना इतना देना है। तो मेंबर को सडनली एडिशनल बर्डन हो जाता है। एक बार सडनली बर्डन दोगे, बोझा दोगे, तकलीफ दोगे, तो मेंबर आपके प्रति नाराज होता है, कई चीजें होनी शुरू हो जाती है। आर्किटेक्ट जब आपको लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देता है तो उसे क्या क्या कंसिडर करना होता है। लोकल एरिया का
आपके एरिया का, लोकल एरिया का करंट रेडी रेकनर वैल्यू क्या है, कैपिटल कॉस्ट्स क्या है, करंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है। ऐसा नहीं कि 40 बरस पहले 400 रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था तो आज भी वही होगा, अभी नहीं है। लेबर बढ़ गया, पानी बढ़ गया, सारे रॉ मटेरियल, सीमेंट, लोहा, फला ढिकाना, सब चीज़ों के प्राइस बढ़ गए, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया। वो जो 5-10 लाख रुपया रखा हुआ है सिंकिंग फंड में, आज उससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ना पेंटिंग तक नहीं होने वाला है। तो AR takes into consideration ready reckoner value, capital cost, current construction cost, which will depend on amenities and facilities provided to your building, and then issue proper certificate of construction cost, which should be periodically used to calculate collections of sinking fund and repair fund and any probable major repairs that may be required. बुद्धिमानी का काम नहीं है कि पुराने जमाने का ही सिंकिंग फंड रेट और रिपेयर फंड का रेट जारी रखे। 40 बरस पुराना रेट जो है बिल्कुल बुद्धिमानी का काम नहीं है, विच इज रियली ए मेजर टू मेजर मिस्टेक्स दैट मोस्ट सोसाइटीज डू। लगभग 90% सोसाइटी ये मिस्टेक आज भी करे जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये दिखता है कि आप कई एरिया में जाओगे, ऐसे नजर दौड़ाओगे तो आपको लगेगा ये बिल्डिंग तो इसमें माइक्रो क्रैक्स है, पट्टा पट्टा दिया हुआ है क्रैक्स को छुपाने के लिए, पेंटिंग ही नहीं है, फंगस लगा हुआ है, एल्गे लगा हुआ है, काला काला पड़ा हुआ है, बिल्डिंग पेंटेड नहीं। तो आप उसको देख के आपको समझ लेना चाहिए कि भाई ये बिल्डिंग में रिपेयर होने की क्षमता नहीं है। पीपल डू नॉट वांट टू रिपेयर इट और दे डू नॉट डेलिबरेटली वांट टू कलेक्ट फंड्स टू रिपेयर इट। कई कारण होते हैं। आप उसका गेट देखोगे, ड्रेनेज पाइप्स देखोगे, इम्प्रॉपर कंपाउंड वॉल्स देखोगे। आप नजर क्या देखोगे, वो आर्किटेक्ट जिस नजर से देख रहा है, आप अगर उस नजर से देखना शुरू करते हो तो आपको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि इस बिल्डिंग में अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। जैसे आप उस बिल्डिंग में अगर आप फ्लैट खरीदने जाते हो तो आप क्या क्या देखने वाले हो, बिल्डिंग पेंटेड है या नहीं है। क्योंकि मैं आने के बाद में पेंटिंग का कॉस्ट डालेगा तो बोलेगा कि लाओ भाई सब जन मिलके 1-1 लाख रुपया दो पेंटिंग का कॉस्ट के लिए। फिर आप देखोगे कि ड्रेनेज प्रॉपर है या नहीं है, पानी लीकेज तो नहीं कर रहा है कहीं से, कंपाउंड वॉल कैसा है, बिल्डिंग के आपके गेट्स वगैरह कैसे हैं, गेट नहीं है, टूटा फूटा गेट है, पेंटेड नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ों से एक अंदेशा होता है कि मैं इस सोसाइटी में फ्लैट खरीदूं या नहीं खरीदूं। ये सारी चीजें आप साधारण नजर से देखते हो, पर आर्किटेक्ट इन डेप्थ देखता है। फिर वो बोलता है अच्छा आपका गेट में इतना बड़ा गेट है, इसको इतना खर्चा होता है, आपका इतना बड़ा सोसाइटी है, इतना बड़ा कवरेज वॉल्स का है, इतना बड़ा रिपेयर का कॉस्ट जाएगा, इतना बड़ा पेंटिंग का कॉस्ट जाएगा वगैरह। तो कॉस्ट निकालता है वो, सारों को मिला के वो देखता है कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2020 में क्या होना चाहिए था, 2015 में क्या होना चाहिए था, एंड सो फिर 2025 में क्या होना चाहिए था, फिर 2030 में क्या होना चाहिए था। एवरेज और एक 5-1 साल में आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिवाइज करना चाहिए। बिल्डिंग पुरानी है तो हर 3 साल में करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बेस पे आप अपना सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड वगैरह वगैरह करोगे। आर्किटेक्ट का एक और भी काम है, आपका BMC का सैंक्शन प्लान स्टडी करना है। आज के दिन पे आपको नहीं पता है कि आपकी बिल्डिंग का स्टेटस लीगल है, इलीगल है, प्लान सैंक्शन है या नहीं है, 7 माले की बिल्डिंग का है कि 10 माले की है कि 25 माले की, वी डू नॉट नो दैट। आप गूगल करोगे तो पता चलेगा कि भाई ये बिल्डिंग का तो सिर्फ इतना ही सैंक्शन प्लान था एक्चुअली, और बिल्डिंग ने और ऊपर एक्स्ट्रा बना दिया। या 5,000 का FSI था टोटली, बिल्डर ने 7,000 बना दिया। इसके लिए अब म्यूनसिपैलिटी बोलता है कि आपको हम OCC नहीं देंगे, आपको OC भी नहीं देंगे, आपको फायर OC भी नहीं देंगे वगैरह। आर्किटेक्ट देखता है कि आपके जो जमीन है वो एग्रीकल्चरल लैंड है के ऊपर बनी हुई है आपकी बिल्डिंग, या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर बनी हुई है, या गैर कानूनी तरीके से ही बनी हुई है टोटली, या रिजर्व प्लॉट ऑफ लैंड है क्या आपका, कलेक्टर के प्लॉट पे बना दिया, फॉरेस्ट के प्लॉट में बना दिया। आपको ध्यान होगा बोरीवली कांदिवली के एरिया में फॉरेस्ट लैंड पे जो प्लॉट्स बने हुए, कितना लंबा लंबा केस चला उस चीज के ऊपर।
देन ही चेक्स ऑल दिस थिंग्स और अंडरस्टैंड्स कि ये सारी चीज़ों के बाद में आपकी बिल्डिंग स्टडी करने का कि एफएसआई कितना यूज हुआ था उस समय, अभी आज के दिन पे कितना बाकी है, आज के दिन का लेटेस्ट गवर्नमेंट क्या रूल्स है रेगुलेशंस है एफएसआई के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा अवेलेबल है क्या, कोई फ्यूचरिस्टिक या टेम्परेरी यूज या परमानेंट यूज के लिए क्या हम एफएसआई यूज कर सकते हैं, ये सारा चीज का रिपोर्ट देता है आर्किटेक्ट आपको। तो आर्किटेक्ट क्यों अपॉइंट करना है सोसाइटी में, छोटी सोसाइटी में या बड़ी सोसाइटी में, ये उसका कारण बैठता है। आर्किटेक्ट का काम है, जनरल बॉडी में आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया, रिमेंबर दैट ही इज एन ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी आल्सो अंडर सेक्शन 220 एंड 227। तो आर्किटेक्ट को आप अथॉरिटी देना होगा आपको कि मेंबर के फ्लैट में जाओ, चेक करो वेरियस एनक्रोचमेंट्स, ऑल्टरेशंस, किचन यहाँ था किचन वहां पे कर दिया, सिंक यहाँ था उधर कर दिया, लीकेज हो रहा है क्या उससे, एक्स्ट्रा लॉफ्ट क्रिएट कर दिया क्या। पुरानी बिल्डिंगों में 14 फुट की हाइट होती थी, तो कई लोग उसको लॉफ्ट क्रिएट कर देते थे, तो लॉफ्ट क्रिएट करने के टाइम पे वजन पड़ता था बिल्डिंग में, उससे लीकेज वगैरह भी शुरू हो सकता था। कई मेंबर बिल्डिंग के जो कॉलम्स है, बीम्स है, पिलर्स है, उसमें चेंजेस करते हैं, एक एक्स्ट्रा 6 इंच का जगह और मिल जाए इसके लिए चेंज करते हैं। आपको अगर ध्यान होगा तो कुछ साल पहले बोरीवली की एक बिल्डिंग थी जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में उसने पिलर में खड्डा कर दिया तिजोरी छुपाने के लिए, और बिल्डिंग रातों रात गिर गई थी। लक्ष्मी छाया बिल्डिंग का नाम है, गूगल करोगे तो वो भी मिलेगा। तो इस तरह कॉलम, बीम्स और पिलर्स को मॉडिफाई करना या ऑल्टर करना टिपिकली हर सोसाइटी में मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स करते रहते हैं, चुपचाप करते हैं, जो भी करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर से उसका कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को आपने जो बोला वो करके दे देगा आपको। लेकिन आर्किटेक्ट का काम है कि मेंबर के फ्लैट में जाना, सैंक्शन प्लान लेना, चेक करना कि वो इधर गैलरी था, इधर नीच एरिया था, इधर फ्लावर बेड एरिया था, इधर डक्ट एरिया था, वगैरह वगैरह, और आपको रिपोर्ट देना, आपको इनसे सोसाइटी को जनरल बॉडी में चर्चा करने के लिए कि भाई ये सब चेंजेस हुआ है, ये सब जो चेंजेस है इट इज डेंजरस टू द हेल्थ ऑफ द बिल्डिंग। छोटा सा डैमेज भी बिल्डिंग एक मेंबर के कारण उसका रिपेयर कॉस्ट बाकी सारे मेंबर्स को भुगतना पड़ता है। इसके लिए ये चीज को जनरल बॉडी मीटिंग में डिस्कस करना जरूरी है। डिस्कस कैसे करोगे, आप खुद तो सर्वे नहीं कर सकते हो, आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, कानून आपका रिपोर्ट नहीं मानने वाला है, वो आर्किटेक्ट का ही रिपोर्ट मांगने वाला है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आर्किटेक्ट हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द आर्किटेक्ट्स एक्ट, उसके पास उसका काउंसिल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, जैसा लॉयर्स के पास में कैसा होता है, जैसे डॉक्टर्स के पास में कैसा होता है, सेम टू सेम आर्किटेक्ट्स के पास में होता है। उसका रिपोर्ट सिविल केसेस में, बीएमसी केसेस में यूज होता है टू डिटरमाइन कि आपने ये डैमेज किया हुआ बिल्डिंग में, इसको या तो रेक्टिफाई रिस्टोर करो या तो प्रोसिक्यूशन फाइल करो। क्योंकि अनिल भाई ने अपने घर पे चेंजेस किया, 100 फ्लैट 100 मेंबर की, 100 ओनर्स की सोसाइटी है मेंबर्स की, एक ने चेंज किया, बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ, लीकेज शुरू हो गया, तो बाकी सारे जन को उसका कॉस्ट बेयर करना है। ये आपके बायलॉ में 65 में, 66 में, 67 में लिखा हुआ है, और 13 और 14 में ये लिखा हुआ है कि मेजर रिपेयर्स का कॉस्ट सबको बराबर बराबर देना हुआ है। तो एक मेंबर ने गलती किया, आप उसका भुगतान करोगे। ये कब पता चलता है, काफी समय के बाद में। लेकिन अगर आपने आर्किटेक्ट अपॉइंट किया और वो पीरियडिकल चेक करता है तो आपकी बिल्डिंग बची रहती है, मेजर खर्चा नहीं होता है, और बिल्डिंग की टिपिकली लाइफ जो एनएचबी के हिसाब से 50 बरस है, आप उसे इवन 60, 70, 80 बरस तक भी लेके जा सकते हो। अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स सोसाइटी वाले बोलते हैं कि खड्डे में जाना तो बिल्डिंग को, अच्छा है फटाफट रीडेवलपमेंट करेंगे, जो आजकल का एक ट्रेंड हो गया, चलन हो गया, फॉल्स चलन है। आपको पता होगा कि 50% से ज्यादा, रेरा के वेबसाइट पे देखिएगा, 50% से ज्यादा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आज के दिन पे अटके पड़े हुए हैं, स्टैंड स्टिल पे, डिले हुए थे जा रहे नॉन स्टॉप। बिल्डर भाग जाता है,
नहीं करता, बोलता है फंड्स नहीं मेरे पास में, जानबूझ के बहानाबाजी करके 3 साल का प्रोजेक्ट को 6 साल 10 साल कर देता है। आप कब तक वेट करने वाले हो? तो ये सारी चीज को अवॉइड करने के लिए एक आर्किटेक्ट का रिपोर्ट या आर्किटेक्ट अपॉइंट करते हो तो उसका रिपोर्ट आपके बहुत काम आता है और आपको एक्चुअली बहुत ढेर सारा सेविंग्स होता है। रिमेंबर, बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए करोड़ों रुपए घुसते हैं, लाख रुपए नहीं घुसते, करोड़ों रुपए घुस जाते हैं। लेकिन अगर आपने आर्किटेक्ट को एम्प्लॉय किया हुआ है, एक बहुत छोटा रकम जाता है। तो ये सारी चीजें आपके करोड़ों रुपए के नुकसान होने से बच सकता है। आर्किटेक्ट का रिपोर्ट और सैंक्शन प्लान स्टडी करने के बाद में एडिशनल या एग्जिस्टिंग पार्किंग स्पेस को मॉडिफाई करने में या क्रिएट करने में, एडिशनल पार्किंग स्पेस बनाने में, स्टिल्ट है, पोडियम है, बिल्डर अपने हिसाब से पोडियम पार्किंग बनाता है और स्पेशियस बना देता है, लेकिन आर्किटेक्ट कंसीडर कर सकता है और उसको रिवाइज कर सकता है। उसके पास वैसा वाला पावर है, उसको अथॉरिटी दिया हुआ है कि वो मॉडिफाई करे, बीएमसी में सबमिट करे, चेंज करवा ले परमिशन लेके, and it can do it. Architect report can also be used for new stack or mechanized parkings, which greatly helps in reducing disputes in a society. पार्किंग का तो आप सभी को ज्ञान है कि होलसेल में डिस्प्यूट्स होते हैं पार्किंग के बारे में, खास करके उन सोसाइटीज में जिनमें पार्किंग स्पेसेस कम है। तो आर्किटेक्ट ये देखता है कि ठीक है, पार्किंग स्पेस कम है, मेंबर ज्यादा है, एक्स्ट्रा गाड़ियां आ गई आज के दिन पे, क्या कुछ जगह लगा के स्टैक पार्किंग या मैकेनाइज पार्किंग कर सकते हैं क्या? तो आर्किटेक्ट का रिपोर्ट इस चीज के बारे में जरूरी है, टू क्रिएट एडिशनल पार्किंग स्पेसेस अमंगस्ट द अवेलेबल पार्किंग और कॉमन एरियाज ऑफ द सोसाइटी। आपने देखा होगा कई बार नीचे स्टिल्ट एरिया में 15 फीट या 18 फीट का गैप होता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि एक स्टिल्ट एरिया में 2 गाड़ी लगा सकते हैं, इंडिविजुअल स्टैक पार्किंग भी हो सकता है। तो ये एक तरीका है कुछ डिस्प्यूट्स रिड्यूस करने की पार्किंग के बारे में, पर इसके लिए आपको आर्किटेक्ट का रिपोर्ट लगना ही लगना है। आर्किटेक्ट की एक और सर्विस होती है, जैसे कई ऊंची बिल्डिंग होती है, हर 7वें माले को रेफ्यूज फ्लोर बनाना है, कई लोग उसको एनक्रोच कर लेते हैं, सोसाइटी अपना ऑफिस बना लेती है, गोदाम बना लेती है, मेंबर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर एनक्रोच कर लेता है, बिल्डर खुद ही उस रेफ्यूज एरिया में एक्स्ट्रा फ्लैट बना के बेच देता है। बिल्डिंग में फायर स्प्रिंकलर्स नहीं लगी हुई है, फायर के पाइपलाइन सेपरेटली लगी नहीं हुई है, छत पे फायर की एडिशनल टंकी नहीं है, जो इक्विपमेंट्स है फायर बस सैंड बास्केट वगैरह वगैरह, ये सब चीज के बारे में भी रिपोर्ट आर्किटेक्ट का बनाने का काम है। तो ही शोज कि आपके बिल्डिंग में इलीगल या एनक्रोच यूसेज ऑफ रेफ्यूजी एरियाज हुआ है क्या, लैक ऑफ फायर स्प्रिंकलर्स, पाइपलाइंस एंड अदर इक्विपमेंट्स। Yearly report by an architect regarding health of buildings, leakages from internal flats, external or leakages from external walls or from terrace, illegal alterations, encroachments, amalgamation, 2 फ्लैट के बीच की दीवार निकाल देना, किचन शिफ्ट कर देना, बालकनी एनक्लोज करना, ये सारी चीजों का देखने का काम आर्किटेक्ट का है, आपका नहीं है। आपके रिपोर्ट का लीगलिटी नहीं है। तो कई मेंबर्स एमलगेमेट करते हैं, बालकनी एनक्लोज कर लेते हैं, टेरेस है, फ्लावर बेड है, डक्ट एरियाज है, नीच एरियाज है, सीवेज सिस्टम्स को चेंज करते हैं। सीवेज सिस्टम्स चेंज करने का मतलब, बिल्डिंग जब बनती है तो एक टिपिकल फॉर्मूला है नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से कि टॉयलेट के ऊपर ही पूरा सीक्वेंस ऊपर तक सिर्फ टॉयलेट और टॉयलेट बनेगा। ऐसा नहीं कि टॉयलेट बना उसके बगल में किसी और का बेडरूम बना, वो परमिटेड ही नहीं है। लेकिन कई लोग इस चीज को मॉडिफाई करते हैं, एक्स्ट्रा टॉयलेट बनाते हैं पाइपलाइन डाल के। कानूनी गुनाह है, पेनल्टी भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है।
एसटीपी इंस्टॉलेशंस के बारे में उसको चेक करना है। आपका पानी का इंक्रीज और डिक्रीज वाटर सप्लाई सिस्टम्स, पाइप्स, वाटर मीटर्स चेक करके आपको रिपोर्ट देना है। क्या आप इस ढंग से आपका ये प्रॉब्लम है, इस ढंग से आपको सॉल्व करना है, इस ढंग से आपको कैलकुलेशंस करना है आपके बजट प्रोजेक्शंस का। बिल्डिंग की एक लाइफ के बाद में यू कैन आस्क द आर्किटेक्ट टू गिव यू अ रिपोर्ट फॉर रीडेवलपमेंट, फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट, for major repairs, for installation of solar panels, for installation of rainwater harvesting systems, for installation of mobile towers, for installation of advertising and hoardings आपके टेरेस के ऊपर या बिल्डिंग के साइड की वॉल पे, कंपाउंड वॉल्स पे। ये सारी चीज़ों का जब आर्किटेक्ट आपको रिपोर्ट देता है तो आपको ये पता चलता है कि मेरी बिल्डिंग मोबाइल टावर का वजन सहन करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो आप मोबाइल टावर्स ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, होर्डिंग्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। आर्किटेक्ट के रिपोर्ट के बगैर कमर्शियल ग्रेड का सोलर पैनल, कमर्शियल ग्रेड का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स या मोबाइल टावर्स या एडवर्टाइजिंग वगैरह आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। मेंबर बोलता है मैं ये रिनोवेशन करता हूँ, मैं ये नहीं चेंजेस नहीं करूंगा, लेकिन चुपचाप कर लेता है, अमेलगेमेशन भी कर लेता है 2 फ्लैट का। तो अगर आपने ये आर्किटेक्ट अपॉइंट किया हुआ है तो आर्किटेक्ट आपको रिपोर्ट देता है कि भाई मैंने इस चीज़ का चेक किया, फ्लैट में ये रिपेयर ठीक से हुआ है, इसके लिए ये मेरा कंप्लायंस रिपोर्ट यानी एनओसी देता है वो, ऑन एनी इंटरनल रेनोवेशंस, एमलगेमेशंस, लीकेज रेक्टिफिकेशंस, बेसिक इंटरनल लिफ्ट, इलेक्ट्रिकल, फायर सेफ्टी ऑडिट वगैरह भी वो कर सकता है, बेसिक, नॉट एग्जैक्टली द एंटायर थिंग। बट इफ यू सी इसकी अपने इलेक्ट्रिकल का एक्स्ट्रा वायर खींचा हुआ है ऊपर तक, सेफ्टी मैकेनिज्म्स लिए हुए हैं क्या आपने? बच्चों के रीच के बीच में एक बात है क्या? वायर पतला लिया जाड़ा लिया है, किस चीज के लिए लिया हुआ है? लिफ्ट में एक्स्ट्रा वजन डाला हुआ है क्या? एंड सो ऑल दिस थिंग्स एन आर्किटेक्ट कैन गिव यू अ रिपोर्ट which will be helpful to you for the health of your building. आर्किटेक्ट कई बिल्डिंग्स में ऑफिस रूम नहीं होता है, ये टॉयलेट ब्लॉक नहीं है, बिल्डिंग नहीं बनाता है, बिल्डर नहीं बनाता, उसके लिए और कुछ यूज कर लेता है। तो आर्किटेक्ट स्टडी करता है आपका प्लान्स को और बोलता है कि ठीक है ये वाला परमिशन में बीएमसी से ला सकते हैं। किस चीज के लिए? सोसाइटी का ऑफिस के लिए, सम प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए, जैसे छोटा मोटा कोई यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल हो गया या कम्युनिटी हॉल हो गया या क्लब हो गया या स्विमिंग पूल हो गया या ड्रेनेज लाइन हो गया, ये सब चीज़ों का परमिशन आपका आर्किटेक्ट ला सकता है। तो आर्किटेक्ट अपॉइंट करना आपके लिए बेनिफिट ही होगा। फ्रेंड्स, एक 2 मिनट का स्पॉन्सर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। प्लीज होल्ड ऑन टिल देन। थैंक यू।
Welcome back, friends. Now we can take up questions by our friends here. सिर्फ आज के विषय पे ही हम प्रश्न उत्तर करेंगे. आज का विषय आर्किटेक्ट फॉर सिविल रिपेयर्स अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ड्यूटीज. फ्रेंड्स, जिस किसी को भी प्रश्न पूछना है, प्लीज क्लिक ऑन द हैंड सिंबल ऑन योर स्क्रीन. We will take up questions in sequence. Only one short question per person. While asking questions, please switch on your video. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So we will take up our questions. Any friend has any questions regarding today's issue? जैन साहब, आपसे शुरू करें. जो ये रिपेयर का जो आर्किटेक्ट के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जो रिपेयर का जो खर्चा जो होता है तो वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. तो जो मेजर रिपेयर का फंड और सिंकिंग फंड, तो उसमें से यूज कर सकते हैं या जनरल रिजर्व को यूज करना पड़ेगा? आपका जो भी फंड सोसाइटी के बैंक में पड़ा हुआ है, जो भी फंड है, उसमें से शेयर कैपिटल फंड को अलग कर दो. अभी समझो, मान लो 100 रुपए आपके बैंक में पड़ा है, जिसमें से 10 रुपए आपका शेयर कैपिटल वगैरह वगैरह है. उसके अलावा आपने क्या जनरेट कर रखा है? आपने सिंकिंग फंड जनरेट कर रखा है, आपने रिपेयर फंड जनरेट कर रखा है. एक बिल्डिंग फंड भी, बिल्डिंग डेवलपमेंट फंड भी हो कुछ. हाँ, जनरल बॉडी में और कोई फंड आपने अगर सैंक्शन किया हुआ है तो आप वो, तो ये सब मिला के मानो 100 रुपए में से शेयर कैपिटल 10 रुपए अलग करो. बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैपिटल आपका दिखेगा. 90 रुपया बचा, पूरा का पूरा 90 रुपया आप अपने मेजर रिपेयर फंड्स में यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट prepared by a proper architect, not by a contractor. By an architect is there on record, and he says, okay, this project is of worth 90 rupees. Based on that justification, उसका आधार लेके आप जनरल बॉडी का परमिशन लोगे कि ये 90 रुपए का काम है, इसका फंड्स कहाँ से लाना है. तो सेक्रेटरी का काम है ये डिक्लेयर करना. सेक्रेटरी का काम है कि मेरे पास बैलेंस शीट में ये सारे अमाउंट पड़े हुए हैं. पहला सुझाव उसका वो होना चाहिए. तो क्या हम इसको यूज करें, या जनरल बॉडी डिसीजन लेता है कि नहीं, उसको साइड में पड़ा रहने दो गुल्लक में. गुल्लक वाले में डब्बा रहता है, कॉइन डालते हैं हर बरस. आप सिंकिंग फंड भी डालते रहते ना हर बरस उस पे. तो जनरल बॉडी बोलता है नहीं, गुल्लक मत तोड़ो. जैसे अपने माता पिता को अपन पूछते हैं कि गुल्लक तोड़ दो क्या, मेरे को ये खरीदना है, तो माता पिता बोलते हैं नहीं मत तोड़ो उसको, ये ले पैसा ले, जाके करके लेके आ जा. सेम जनरल बॉडी अगर ये बोलता है कि नहीं गुल्लक मत तोड़ो, सिंकिंग फंड रिपेयर फंड जो अपना पड़ा हुआ है बैलेंस शीट पे उसको मत हाथ लगाओ, ये एडिशनल पैसा ले लो, तो ये जनरल बॉडी का डिसीजन है कि आपको कौन सा फंड यूज करना है. पूरा का पूरा यूज करो, आधा यूज करो, आधा जनरल बॉडी से लो, जो भी कुछ है वो. पर आप वो सारा चीज आर्किटेक्ट के रिपोर्ट के ऊपर ही होगा, क्योंकि आप रिपोर्ट नहीं बना सकते, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो उस चीज के लिए. अगर आप खुद भी अगर आर्किटेक्ट हो, काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, और फिर भी आपको सिर्फ अपॉइंटी
ओनली एन अपॉइंटी आर्किटेक्ट का रिपोर्ट ही लीगल माना जाएगा। सोसाइटी में सारे आर्किटेक्ट भरे होंगे लेकिन अपॉइंट नहीं किया हुआ जनरल बॉडी में उसको, इसके लिए उसका रिपोर्ट इनवैलिड रहेगा। जैन साहब और कुछ? नहीं, बस थैंक्स। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर गणपत राठौड़, प्लीज। ये आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल ऑडिट, ये दोनों ऑडिटर, स्ट्रक्चरल ऑडिटर, दोनों में क्या डिफरेंस है? और आर्किटेक्ट अपॉइंट किया हुआ है तो उसके बाद में भी स्ट्रक्चरल ऑडिटर ऑडिट कराना होगा क्या? स्ट्रक्चरल ऑडिट एक अलग व्यक्ति है, वो खाली बिल्डिंग का ढांचा देखता है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका ढांचा क्या है पता है आपको? आपका स्केलेटन, हड्डी, यहां से लेके पैर के नीचे तक वो आपकी हड्डी है, वो आपका ढांचा है, वो आपका स्केलेटन है, वो आपका स्ट्रक्चर है। उसको चेक करने का काम वो एक्सरे वाले का है या ऑर्थोपेड का है। इसी तरह बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को चेक करने का काम सिर्फ और सिर्फ एक इंजीनियर का है, हु शुड बी ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, नॉट एन आर्किटेक्ट। He checks only the structure of the building and he tells you कि ये पिलर खराब है, वो एनडी टेस्ट करेगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेगा, पिन मारेगा, होल मारेगा, सीमेंट निकालेगा, रेती का टुकड़ा निकालेगा, लोहे का टुकड़ा निकालेगा, लैब में भेजेगा, वो बोलेगा नहीं ये तो पूरा गल गया हुआ है, जैकेटिंग करो, ये करो, वो करो, काफी कुछ करने को बोलेगा आपको। ये स्ट्रक्चरल ऑडिटर का रिकमेंडेशन रहेगा। उसके बेस पे आपका आर्किटेक्ट अभी बोलेगा कि कितना स्क्वायर फीट है, अभी टोटल कितना स्क्वायर फीट है, अंदर बाहर ये वो वगैरह वगैरह, वो काम है आर्किटेक्ट का। स्ट्रक्चरल ऑडिट का काम है वो आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट 353 बीएमसी एक्ट में पूरा बिल्डिंग का करने के लिए, जो हर 30 साल में करना होता है पहली बार ओसी की तारीख से, और 353 बी के हिसाब से हर 10-10 साल में करना है। और बायलॉ में क्या लिखा है ना, उसको छोड़ दो, फेंक देने का उसको, बायलॉ को, उसका कोई मतलब नहीं। बीएमसी के कानून के ऊपर आप बायलॉस नहीं वापर सकते। कई सोसाइटी में बोलते नहीं हमारे बायलॉज में ही लिखा है, तो बीएमसी ऑफिस में जाके एक बार बोल के देख लो, माझ्या बायलॉज मध्ये तो हे 3-3 वर्ष लिहिलेलं आहे। बीएमसी ये नहीं बोलता है कि आप मत करो, आपका हर साल करो, हर 6 महीने में करो, बीएमसी को क्या मतलब है। लेकिन मुझे मेरे कानून के हिसाब से हर 10 वर्ष वाला स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट दे दो। बीएमसी वाला आपको आर्किटेक्ट रिपोर्ट नहीं बोलता है, स्ट्रक्चरल ऑडिटर वाला चेक करेगा, ढांचा बताएगा, ड्राइंग बता देगा, टेस्ट करके बता देगा, वगैरह वगैरह, और रिपोर्ट दे देगा। अब उसके बाद में उसका रोल खत्म हो जाता है। अब किसका रोल शुरू होता है? आर्किटेक्ट का। वो आप कैलकुलेट करता है 10 बाई 10, 15 बाई 20, इतना लंबा, इतना चौड़ा, ये छत का प्लास्टर, ये वो वगैरह वगैरह, पेंटिंग, लीकेजेस वगैरह, वो कैलकुलेशन बनाता है, फिर वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है। स्ट्रक्चरल ऑडिटर वाला फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनाता है ना। ऑर्थोपेड के पास में जाओगे, आपकी हड्डी उड्डी का सब नाप लेगा, वो एक्सरे निकालेगा, सब कर देगा, लेकिन आपके ऑर्गन्स का चेकअप वो नहीं कर सकता है। सेम अभी ये डिफरेंस हो गया दोनों जगह। और कोई प्रश्न है राठौड़ साहब? स्ट्रक्चरल ऑडिटर मींस मतलब वो सिर्फ ये पिलर्स, कॉलम्स, बीम्स और ये जो मतलब फ्लोर, हाँ, स्लैब्स, इतना ही देखेगा? यस। अच्छा, उसमें जो डिफेक्ट होगा वही पॉइंट आउट करेगा, मतलब वो ये बताएगा अपनी रिपोर्ट। ऑडिटर आपका एमलगेमेशन का दीवार भी देखेगा, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। हाँ, आपको बोलेगा कि आपने एक्स्ट्रा छज्जा बाहर निकाल दिया हुआ है, लोड पड़ रहा है, वो स्ट्रक्चरल में आ जाता है। फिर से वो बोलेगा आपने फ्रेंच विंडोज बना दिया है, वो लीकेज आ गया, वो स्ट्रक्चरल में आ जाएगा। सो मेनी थिंग्स आर देयर। कई गार्डन फ्लावर बेड एरिया होता है अपने फ्लैट्स में, कई बार 2 फीट आगे होगा और 10-12 फीट चौड़ा होगा,
लोगों की फितरत है कि 1 इंच भी दिखा तो एनक्रोच कर लेने का उसको और घर के अंदर ले लेने का, माझा फ्लॅट थोडा मोठा झाला, ये हिसाब से आप एनक्रोच कर देते। तो स्ट्रक्चरल ऑडिटर का काम है आपको बोलने का कि सर ये एनक्रोचमेंट है, बिल्डिंग का ये प्रभाव पड़ता है। अब उसको रिस्टोर करना, रिपेयर करना वगैरह वगैरह वो आर्किटेक्ट का काम है। स्ट्रक्चरल ऑडिट तो मैंडेटरी है आफ्टर 30 years. 30 years and every 10 years as per BMC Act. Okay, so next question is by Mr. Francis Menezes, please. Yes, sir. Sir, architect is appointed. Structural report has everything is given. Building comes under C2B under repair. Please Society got the fund. explain to our friends also over here. एक आधा मिनट में explain कर दीजिए मैनेजर सर। Fund is available. Some of the tenant is objecting for repair, saying don't use the collected fund, but collect fresh fund. So in that case, GB has said, no, we will not collect for fresh fund. Whatever fund is available, that we will do the repair. Some of the tenants are mischievous doing. Are you asking कि funds GB कलेक्ट करना चाहिए, जैसा अभी नवीन साहब ने, जैन साहब ने बोला, उसी के आसपास का क्वेश्चन है आपको? आपका क्वेश्चन पूछिए आप। GB बोलता है कलेक्ट करो। हाँ, that is majority people are saying go for repair with the fund is collected in the past. तो the GB decision is final in this case. 100 मेंबर के सोसाइटी है, उसके अंदर 40 मेंबर्स बोलते हैं कि रिपेयर नहीं करने का है या फंड यूज नहीं करना है, 40 मेंबर्स, और 60 मेंबर्स बोलते हैं रिपेयर करना है, बैलेंस शीट में पैसा पड़ा हुआ उसको वापरो, एक्स्ट्रा पैसा नहीं वापरना है। तो जो मेजॉरिटी का जो डिसीजन होगा वो लागू होगा। आप सेक्शन 72 MCS एक्ट आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जनरल बॉडी डिसीजन इज सुप्रीम। Thank you. तो बाकी जन अगर ये बोलते हैं कि नहीं करना है, वो ऐसा नहीं है। 100 मेंबर के सोसाइटी में 4-5 टीम बन जाती है मैनेजिंग कमेटी को हैरान परेशान करने के लिए, या खुद को हैरान परेशान करने के लिए, या खुद को मजे लेने के लिए। कई सोसाइटी में होता है ये। Thank you. इसीलिए वो कानून ने बोला मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगा वही फाइनल है। एनीवे, और किसी का कोई प्रश्न है? तांडेल साहब, आप बहुत दिनों के बाद ज्वाइन हुए, आपका कोई टिप्पणी मैटर में? No, sir. I am getting a lot of knowledge since before COVID also. We are very much proud of your activities. थैंक यू। आज के विषय पे आप अपने कुछ एक्सपीरियंस बोलेंगे? एक आधा मिनट 2 मिनट जैसा आपको ठीक लगे बस। मैं एक पूछना चाहता हूँ कि यदि आर्किटेक्ट अपॉइंट किया और उसने पूरा रिपोर्ट देने के बाद नया कमेटी आया और विदाउट उसका टर्मिनेशन नया कमेटी दूसरा आर्किटेक्ट यदि अपॉइंट करता है तो इट इज वैलिड? Only managing understood. The old committee had appointed an architect. The naya committee came in. Are they wanting to appoint another architect? Yes. Without terminating the previous one, and only managing committee decision it is to change the architect. Managing committee has zero authority to appoint or to change or to terminate a general body appointed person. जैसे मैंने बताया सेक्शन 2/20, 2/27, 2/27 में वो ऑफिसर का ग्रेड उसको दे दिया। दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन कि अगर आपने उसको जीबी में अपॉइंट किया हुआ है तो उसमें वर्ड लिखा है सोसाइटी में।
अगर आपने जीबी में अपॉइंट किया हुआ है तो आप एज मैनेजिंग कमेटी आप कुछ नहीं कर सकते। उसका रिपोर्ट लेना है, जनरल बॉडी में देना है। जनरल बॉडी में मैनेजिंग कमेटी ये प्रपोजल डाल सकती है कि सर इस आर्किटेक्ट ने बराबर काम नहीं किया हुआ, तो हमको इसको निकालना है, ऐसा हमारा प्रस्ताव है, या दूसरे को अपॉइंट करना है, ऐसा प्रस्ताव। और उस समय अगर जीबी ये बोलती है कि डन, इसको निकाल दो, दूसरे को अपॉइंट, वो डिसीजन मैनेजिंग कमेटी का नहीं है, वो डिसीजन जनरल बॉडी का है। मैनेजिंग कमेटी ने सिर्फ सुझाव दिया, प्रस्ताव तो कोई भी दे सकता है। और आपका जो एजेंडा लिखा हुआ है वो जनरल बॉडी को पूछ के नहीं बनाया जाता है, वो बनाया जाता है मैनेजिंग कमेटी खुद करती है। जो भी एजेंडा है इट इज ओनली अ प्रपोजल, नॉट अ डिसीजन। दैट एजेंडा to accept it or to reject it totally or to pass it, इसका कानूनी अधिकार है सिर्फ और सिर्फ जनरल बॉडी। और अगर नहीं होता तो मैनेजिंग कमेटी को ये मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको पास कर देती। लेकिन कानून ये बोलता है कि ये सारी चीजें आपको जनरल बॉडी में लेकर जाना है। पैसा तो जनरल बॉडी का लगने वाला है, आपका थोड़ी ना लगने वाला है। मैं अपॉइंट करूंगा एज ए मैनेजिंग कमेटी, तो मैं अपनी जेब से पैसा नहीं देने वाला हूँ, सोसाइटी का पैसा देने वाला हूँ। तो सोसाइटी मेंबर का मत, सहमति जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मिस्टर सुनील नारायणकर, आप पूछिए। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि पीएमसी को अपॉइंटमेंट किया मई में और उसका पहला काम है मार्गदर्शन करके आर्किटेक्चर नियुक्त करना, लेकिन हमारे यहाँ वैसा हुआ नहीं। तो मैंने एक स्पेशल मल्टीपल एजेंडे वाला स्पेशल एजीएम में क्वेश्चन रेज किया कि आर्किटेक्चर और लीगल एडवाइजर क्यों नहीं नियुक्त किया। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि पीएमसी के पास ऑलरेडी आर्किटेक्चर अपना खुद का रहता है और लीगल एडवाइजर भी रहता है। तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ डिसीजन लिया ही नहीं है। मैंने पीएमसी को पूछा तो वो भी चुपचाप बैठा, एक। और दूसरी बात, अभी मैंने ज़्यादा फोर्स किया लीगल एडवाइजर का नियुक्त के आपके सेशन में मैंने आपको बताया था, तो उन्होंने मल्टीपल एजेंडा में सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने ये रखा था कि लीगल एडवाइजर का नियुक्त करना। तो उसके ऊपर भी मैं ऑब्जेक्शन लिया कि तुमने लास्ट मीटिंग लीगल एडवाइजर का रखा था नियुक्त करना, उसमें हुआ नहीं करके आपने अगली मीटिंग रखा है। तो आपने मल्टीपल एजेंडा में लास्ट में क्यों रखा? तो उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ डिसीजन नहीं लिया। लेकिन मैंने इसके ऊपर प्रेसिडेंट के लिए, चेयरमैन के लिए राइटिंग में लेटर लिखा था ऑलरेडी, वो उनको एजीएम में दिया, स्पेशल एजीएम में, तो उन्होंने वो लिया नहीं। तो ये सब उनका काम जो चल रहा है कि पीएमसी के मार्गदर्शन पे कि अपन लीगल एडवाइजर और ये अभी जो आर्किटेक्चर है उसका नियुक्त नहीं कर सकते, तो उसके बारे में क्या सजेशन है? पीएमसी को पैसा कौन दे रहा है? आप दे रहे हो कि मैनेजिंग कमेटी दे रहा है कि पीएमसी खुद को दे रहा है? कोई जवाब है आपके पास सर उसका? उसके लिए पैसा तो अपना बिल्डिंग में सब लोग मिलके देंगे, जनरल बॉडी दे रही है, बरोबर है? जनरल बॉडी देगी। ये कंफर्म हो गया। हाँ, और पीएमसी का जो ड्यूटीज है, पीएमसी का जो ड्यूटीज है वो आपको समझना पड़ेगा कि पीएमसी कर क्या सकता है, क्या क्या कर सकता है वो। बराबर। क्या वो लीगल एडवाइजरी का काम कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। तो उसको अपॉइंट करने का तरीका क्या हो सकता है? वो क्या, उसको क्या अथॉरिटी है? और उसने अपॉइंट किया तो वो उसने अपॉइंट किया अपने पैसे से, अपना कुछ भी करेगा वो। लेकिन जनरल बॉडी का काम है कि मेरा खुद का लीगल एडवाइजर होना चाहिए, मेरा खुद का इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए, मेरा खुद का अकाउंटेंट होना चाहिए। अब एक अकाउंटेंट बोलेगा मैं आपका सब करके दे दूंगा, पगार पानी भी बांट दूंगा, मैं बैंक का सेक्रेटरी भी मुझे बना डालो, मैं आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करके दे दूंगा। नहीं, ये कानून में अलग अलग आदमियों को अलग अलग परिस्थिति पे ड्यूटीज दिया हुआ है, बराबर है ना? अभी एक पुलिसमैन है तो पुलिसमैन का ड्यूटी फला फला वाला पुलिसमैन का ड्यूटी है, और पुलिसमैन बोलेगा नहीं तुमने गुनाह किया है, तुमको ये मैं 5 साल का सजा देता हूं, तो क्या वो पुलिस दे सकता है क्या? यस और नो?
नहीं दे सकते। क्योंकि उसका काम कोर्ट को दे दिया हुआ है, बराबर है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग डिवाइड कर दिया हुआ है। बराबर जैसे एक डॉक्टर बोलेगा कि मैं ये करता हूँ, तो आर्किटेक्ट बोलेगा नहीं नहीं मैं करता हूँ। हो सकता है कि वैसा कानून अलग अलग हर चीज के लिए अलग अलग चीजों को दिया हुआ बराबर है ना। वो प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए एसआरओ के पास में जाते हैं, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ सब एश्योरेंसेस, बरोबर है। बराबर। मैरिज रजिस्टर करने का तो किसके पास जाएंगे आप? मैनेजर सर। मैरिज शादी तो अपन खुद करेंगे और उसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए अपन अर्जी डालेंगे। तो मैरिज रजिस्ट्रार अलग से विभाग दिया हुआ है। हाँ, तो फैमिली हर कोर्ट। व्यक्ति का अलग अलग विभाग दिया। तो पीएमसी को ये मत बोलो कि आप ऑल इन वन हो जाओ करके। जो आपने अगर पीएमसी को बोल दिया कि आप ऑल इन वन हो जाओ, तो आपका जो प्रोजेक्ट है बाकी का, हाँ, वो हमेशा के लिए, जैसे आपने बॉम्बे में देखा होगा, सालों साल लटके रहते हैं। तो बराबर अगर आपकी जनरल बॉडी को उतना समझ में नहीं है और अगर आपको समझ में है, तो आप मोबिलाइज करो सपोर्ट को, ये सोच के कि चलो ठीक है, उनको समझ में नहीं है, मुझे है, तो मैं ही थोड़ा बहुत हेल्प कर दूं सबको। बराबर आपका ही सोसाइटी ना, आपकी एडिशनल फैमिली है वो। ये सब लोगों को एडिशनल फैमिली बोला जाता है। ये नहीं बोला जाता कि मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, बराबर। ऑक्सिलरी, दूर दूरचे रिश्तेदार, लांब लांबचे वगैरह असं. Anyway, thank you Sunil ji for joining in. Thank you sir. Next question is by Mr. Sanjeev Shah. Yeah, good evening, Agrawal sir. Namaste sir ji, बोलिए. Sir, in our society, the management committee appointed on their own the structural auditor and got the structural audit done. And then they called an SGM to inform all the members about the audit and take a sanction for starting the work. Now, as I know, the general body only has the power to appoint the PMC consultant or something. Yes. I told them in this meeting, you cannot ask for money based on your appointed structural audit. You have to first take the approval of general body to have 3 PMC consultants and then come back to us to select which PMC consultant based on your due diligence. So I just wanted to Sanjeev check. जी, did the MC state के मेरे पास में ये 4 लोगों का कोटेशन आया था इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ऐसा कुछ बताया या मन मर्जी से मैंने अनिल शर्मा को सेलेक्ट कर लिया, बाकी सुनील और सुधीर और रमेश जो है वो साइड में छोड़ दिया? नहीं, मन मर्जी से based on society managers contact, they appointed one structural auditor and spent about ₹1 lakh to get the structural audit done. You have to, if you want to challenge that, you have to put an application under 83, section 83. Yeah. To the DR's office, stating so and so. आपको कुछ लोगों का सिग्नेचर लगेगा 83 एप्लीकेशन में. Okay. और ये बोलना पड़ेगा कि भाई ये वाला जो आदमी है इसको तो जनरल बॉडी ने अपॉइंट किया नहीं था. Right. और इसका पैसा सोसाइटी के फंड से यूज कर दिया हुआ है. आपको ये बोलना पड़ेगा. Okay. इसका पैसा सोसाइटी के फंड से यूज किया विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द जनरल बॉडी. And without a budget provision also. Yes. Yeah. वो आपका फ्रेमिंग प्रॉपरली एप्लीकेशन में करना पड़ेगा. 83 में अगर आपको लोगों का सपोर्ट नहीं है तो 89A का एप्लीकेशन मूव करो. Okay. विच स्टेट्स की साहब यही ऐसा परिस्थिति हुआ था, आप इस चीज का इंस्पेक्शन करो. Okay. जब 89A का इंस्पेक्शन हो जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगा, पहले समय लगेगा, जो भी कुछ लगेगा. Right. तो after that the DR will take cognizance and he will himself say okay fine, this is illegal now. Okay. Provided of course the general body has not ratified it afterwards and you have raised proper documentary evidence to it via a proper protest letter and so and so. अगर आपने protest letter नहीं डाला हुआ है उस GB के मिनट्स के बाद में, तो then you may not be entitled to raise any grievance before the deputy registrar, but you are entitled to raise it as a dispute under section 91 in a cooperative court up to 6 years from the date of the resolution. Okay.
तो गलती हो भी गई, चलो भाई प्रोटेस्ट लेटर नहीं डाला कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेजोल्यूशन आपको लगता है कि गैर कानूनी है तो कोऑपरेटिव कोर्ट में आप इसको सेट असाइड करने के लिए रेजोल्यूशन को डाल सकते हैं। ओके, राइट। और अगर आप डायनामिक है, अगर फंड्स है, सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स डाल दो। ओके, सिविल कोर्ट में भी डाल सकते हैं क्योंकि गैर कानूनी ढंग से पैसा खर्चा हुआ है। राइट, राइट। तो सिविल कोर्ट को आपको ये बताना है कि भाई ये पैसे का जो खर्चा हुआ इसमें मेरा इतना नुकसान हुआ है, 100 रुपया खर्चा हुआ 100 मेंबर की सोसाइटी में, मेरा उसके अंदर 1 रुपया। राइट। उस हैसियत से, उस अधिकार से मैं सिविल कोर्ट में आया हुआ। ओके। मेरे को बाकी लोगों का 99 का जरूरत नहीं है। अगर आपको आपका 1 रुपए का कोर्ट का ऑर्डर मिल गया तो बाकी लोग आपसे प्रेरित होंगे, राइट, है ना, और फिर बाकी कार्यवाही आप कर सकते हो। तो शायद सोसाइटी बोलेगी कि यार अभी संजीव शाह साहब ने तो ये कर दिया, बाकी लोग नहीं कर दे, चलो भाई सबको बांट दो अपना पैसा करके। ओके, राइट। शुरुआत कहीं ना कहीं से कानून में आपको करना होगा वैसा। राइट। और खाली हम लोग ये सोचेंगे कि घर पे बैठ के ठंडी लस्सी पियेंगे, बियर पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो सब काम नहीं होता है। फिर आपको भी ज्ञान है वो चीज का। राइट, राइट, राइट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि बेस्ड ऑन माय प्रोटेस्ट दे डिड अग्री दैट दे विल गो फॉर getting tenders for 3 consultants. That is one part which they have agreed. But on the 1 lakh which they have already spent, I can go for this route of filing a case again in the cooperative court and. शाह साहब मैंने इसीलिए बोला कि if you are dynamic, डायनामिक का मतलब अपने क्या बोलूं मैं उसको साधारण भाषा में, enthusiasm to fight with the committee and get the justification. नहीं, मेरी परिभाषा डायनामिक की अलग है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कितना गट्स है अपने को। राइट, अंडरस्टैंड। तो आप आगे बढ़ सकते हो उस चीज के ऊपर। We have that, right? Yeah, we'll do that thing. Right, sir. So that can be done. So now, anyway, the committee is going for publishing a 10 newspaper advertisement to get the PMC consultants. So that will be the final. And the architect का जो proposal है, that is not valid, in my opinion. वो जो खर्चा हो गया उसको रिकवरी के लिए प्रोसीडिंग्स फाइल कर दीजिए। राइट सर। और एक ही बार करना है ना सर आपको। राइट, यस। है ना, आप समझो मानो 20 बरस से वो सोसाइटी में रह रहे हो, राइट, आपने कर दिया, ऑर्डर भी लेकर आ गए, आपको क्या लगता है कि 5 साल 10 साल के बाद में ऐसी वाली घटना दोबारा होगी कि आपके सोसाइटी में? आपको क्या लगता है संजीव जी? सर, माय एक्सपीरियंस है कि पास्ट में हमने एक कोऑपरेटिव केस में केस भी डाला था और एक 83-88 की इंक्वायरी भी हुई थी। There was 11 lakh rupees which was recovered from the then committee and they were disqualified also. And now that is not being done. At least without the sanction of the general body, they are not spending money. But कुछ committee members अभी ऐसे हैं, वो कहते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल ऑडिट तो हम करा सकते हैं, दैट इज इन द परव्यू ऑफ मैनेजमेंट कमिटी, बट फाइनल खर्चा हम जनरल बॉडी से ही अप्रूवल लेके करते हैं, which is above any 1 lakh, they are coming to the general body. So that lesson they have learned from the past experience. Correct. So that is dynamic working, sir. That is dynamic working. Right. Other things have no consequence. आपने आज काम कर दिया, वो कई सालों तक काम करेगा। आप एक सिंपल लेटर बोलना कि देखो आपने ये काम उस समय किया था, या आपकी दूसरी वाली कमिटी ने किया था, देखो मैंने इसको डिसमेंटल कर दिया आपकी कमिटी को, उसके टुकड़े कर दिए, उसका ये वसूली करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब जजमेंट की कॉपी अटैच कर दोगे आप या आपके और कोई कलीग, कोई भी कर सकता है ना। जैसे मानो आपकी जजमेंट की कॉपी मिली 25 पेज के, सबको सॉफ्ट कॉपी भेज दिया आपने, सब लोगों ने रखा हुआ है और किसी ने भी भेज दिया। तो वो वाली मैनेजिंग कमेटी या और कोई जिसके मन में टेढ़ी वाली फितरत होगी, वो नहीं करना, बंद कर देगा। वो काफी हद तक बंद हो गई सर अब तक, बट हाँ कभी कभी एक ही बार किसी को शुरुआत करनी है, एक ही बार करनी है। Yes, और अगर आप वो इनिशिएशन ले लेते हो तो आप सोसाइटी के प्रूडेंट सिटीजन हो, डायनेमिक सिटीजन हो। राइट सर, एक ही उसमें प्रॉब्लम आती है, देन एवरीबॉडी सेज संजीव सर व्हाई डोंट यू कम इन द कमिटी? Well, if you ask me and if you ask my dynamic suggestion and solution, जो कुर्सी पे बैठा है ना,
बाहर वाला वो कुर्सी को गर्म कर सकता है। आप तो बैठे हो, आप तो गर्माहट कर ही रहे हो कुर्सी को, राइट, बैठने का जिसको ना कुर्सी मैं बैठा तो कुर्सी की गर्मी आउटफिट आ बना गई, ले, या लेकिन बाहर वाला है जैसे आपने गर्म कर दिया कुर्सी को, उसके नीचे हीटर लगा दिया, उसके नीचे दिया रख दिया, धीरे धीरे सुलग रहा है। राइट, तो क्या मेरे को मैनेजिंग कमेटी में आना चाहिए ताकि मेरे को और कोई सुलगाए? ओके, बताइए ना संजीव जी, आपका क्या विचार है? आना चाहिए, बट हाँ, with some preoccupation and my overseas travel, there is a provision. I mean, there is a chance that I may not be able to attend 3 consecutive committees. And there are people, because I have done such things in the past, they said, "Chalo bhai, Sanjeev Shah ko to fir nikal do." So Everybody I do provide requires a my bakra. inputs. I do. Everybody- No, I do provide inputs to the society by almost spending a couple of hours every day in the society office. But I don't want to be a part of the committee for my reasons that because I travel a lot and I stay in US every year for 6 years. Sir, whatever you have done till now, Yeah, you have done not for yourself. not for myself, it's for the society. है ना? Yeah. 11 लाख रुपए जो आपने वसूली किया वो आपके जेब में नहीं आया हुआ, नहीं आया, बल्कि नहीं आया। वो 11 लाख रुपए वसूली करने के लिए शायद कुछ I want to हजार या spend कुछ more. लाख रुपए आपने अपने जेब से खर्चा किया होगा। Yes, 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 yes. Am I Yeah. correct, sir? Yeah, correct, sir, correct, very much. तो अगर आप और किसी को बोलते हो कि चलो जिसको आना है कमेटी में आ जाओ, नहीं आना है तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करो। अपॉइंट कर दें। लेकिन अगर आप एज ए प्रूडेंट सिटीजन आप किसी को बोलते हो कि आप, कानून सर ये कहता है, जैसे नारायण साहब ने बोला, सुनील जी ने, राइट, तो मैंने बोला कि आप सुझाव दीजिए ना, राइट, या है ना? जैसे Give your आप input. समझो आप एक फैमिली हो, आपका चाचा मामा भी जो है, आप चाचा के घर गए, उसके बच्चे ने कुछ बदमाशी किया या कुछ किया, तो अगर आपने उसको सुझाव दे दिया राइट, कि बेटा तेरे को बुखार है तो ये वाला कर ले, राइट, चल भाई हल्दी पानी और चूना ले ले तो तेरा बुखार शाम तक उतर जाए, ठीक हो जाएगा। और उसने कर लिया, तो आपको सुझाव देने में क्या नुकसान है? राइट, या सुझाव तो तो देना ही सुझाव है। देना सबसे ज्यादा बेटर है, या और जो नहीं सुने वो करे जो आपने किया। राइट, बॉम्बे में बोलते हैं ना बजाने का, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। राइट, राइट। ओके, थैंक यू संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. And all this knowledge we are sharing, we are getting from your webinars. Thank you. ऑलवेज वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। Thank you. Yeah. परेश जी आपका प्रश्न नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न है शायद। Yes, sir. Thank you so much, sir. And I appreciate Sanjeev Bhai's contribution. And sir, your contribution, I am also having same dynamics like Sanjeev Bhai is having, but I am yet to reach my goal. But I am very much near to my goal, sir. It's all thanks to you, sir, that you have given me a lot of guidance in that, a lot of matters, sir. Thank you and I appreciate it, sir. Sir, now the question is this way. आपने जैसे बताया सर कि अपना cost of construction has to be increased, right, sir? और आपने बताया proportionally उसी हिसाब से 25% and 75% बढ़ जाएगा सर, accordingly. Sorry, 20%, 0.25. 0.25 and 0.75, both, sir. Yes. Both of the things are interlinked to cost of construction, right, sir? Now the thing is, suppose the MC increases only 0.25% like sinking fund, and the keeps the major repair funds as it is stagnant, that making it 0.75 and उसको 0.25 को ही increase करता है. Is it allowed, sir, to the cost of construction? What stops from doing that? The bylaw is made by the general body. Yes, sir. Bylaw is made by the general body. So if the general body says कि minimum 0.25 की जगह में मैं उसे 0.95 कर देता हूँ, Okay. तो बायलॉज में ये तो लिखा नहीं है कि भाई रेशियो 1:3 का 1:4 का होना चाहिए, है क्या? कहीं पे ऐसा देखा है आपने? सर ऐसा तो नहीं लिखा है, लेकिन मोर और लेस इट इज प्रोपोर्शनेटली। आपने एक दफे भी बताया था कि इट हैज टू बी इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ना उसी हिसाब से एक दफे आपने मुझे ध्यान में है, इट इज रिटन देयर सेपरेटली 0.25 सिंकिंग फंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिनिमम, राइट? बट इट डज नॉट राइट ओवर देयर इन दैट। अभी तक तो नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो अभी नया जो रूल्स आ रहा है उसमें भी लिखा हुआ है। उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 0.25 शुड बी इन प्रोपोर्शन टू 0.75 ऑफ द रिपेयर, ऐसा नहीं लिखा हुआ है अभी तक। ओके। तो इन अदर वर्ड्स कानून का लेखुना ऐसा है कि 0.25 की जगह में आप उसे 2.00% भी कर सकते हो सिंगिंग फंड के लिए। ओके।
And keeping that 0.75 as 0.75 also. That As will it do. is. But Okay. you will not be able to reduce that 0.75 to 0.74. Okay. Now, Right. typically, you can reduce that also. But for that, you need to amend your bylaws. All right. अमेंड कर लीजिए वो सेक्शन 13 रेड विथ रूल 12 में प्रोविजन है अमेंड करने का 75 रेड विथ सेक्शन 13 रेड विथ रूल 12 आप अमेंड कर But लीजिए you- जो मर्जी है कर लीजिए आप Right. जनरल But बॉडी you ने जो cannot- बोल दिया वो फाइनल है वो क्यों But फाइनल you है cannot. क्योंकि रजिस्ट्रार का अथॉरिटी में नहीं आता ऑटोनोमस फंक्शनिंग बॉडी है मेरा सोसाइटी मेरे बायलॉस मैं बनाऊंगा Right. लेकिन कानून के अंतर्गत अगर है तो बायलॉस मेरे हिसाब से ही चलेगा आप रजिस्ट्रार नहीं बोल सकता है कि आप ये बायलॉ बनाओ वो बायलॉ बनाओ ऐसे करो वैसा करो वो अभी Right. तक परमिटेड नहीं है Right. So everything has to be linked with cost of construction and nothing else, right? So, नथिंग एल्स मींस व्हाट एल्स डू यू वांट टू सर no. Like for instance, square feet area of the flat or otherwise, no. Cost of construction से ही linked है, right, sir? 0.25 कॉस्ट ऑफ collection. कंस्ट्रक्शन तो परेश जी वो पर स्क्वायर फीट बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है But later on, sir, एक दफे cost of construction is always by base, right, sir? आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड No. Like 110 rupees is the cost of construction, right, sir? या So नॉट ऑफ द 110 पूरा into- बिल्डिंग नहीं है इट इज पर स्क्वायर फीट बेसिस per square feet basis of the flat, right, sir? So per square feet basis के हिसाब से आपका suppose आपका 760 square feet का carpet area का flat है, तो उसका 0.75 of the cost of construction ना sir, 760 into cost of construction into 0.25 ना sir, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट right we sir? will be taking next few webinars we will be taking something related to sinking fund calculations and everything usages and everything how it is calculated how to get and all those things one more webinar will be for repair fund one more webinar will be for reserve fund Mhm. another webinar will be for corpus fund another webinar will be for generating other legitimate funds also. Right. अभी मेरे वेबिनार को देखने के बाद में अगर आपकी सोसाइटी बोलती है कि भाई ये फंड जनरेट कर सकते हैं तो आपकी सोसाइटी हकीकत में रिच हो जाएगी प्रोवाइडेड योर मेंबर्स एग्री टू इट और ध्यान रखिए अगर मैं आपके सोसाइटी में फ्लैट लेने आया हूँ जी सर. और अगर मैं ड्यू डिलीजेंस करता हूं तो मैं आपके 3 साल का पिछले 3 साल का बैलेंस शीट स्टडी करने वाला हूं सेम तरीके से जैसे मैं अगर कोई कंपनी एक्वायर करता हूं जी सर. आप शायद बिजनेसमैन है आपको पता है कि कंपनी एक्वायर करना है तो उसका पहले बैलेंस शीट स्टडी करना पड़ेगा लेकिन जब आप फ्लैट खरीदने जाते हो ना तो एक यही मेन चीज आप बिल्कुल भी नहीं करते हो उससे भी नहीं होता है नहीं कोई भी नहीं करता वो तो सैंक्शन प्लान भी नहीं देखता है बायर पार्टी वो तो आंख बंद करता है पैसा खिस्से में है खर्चा कर डालो बस बात खत्म आगे पीछे का देखा जाएगा आपको ये विलिंगडन हाइट्स का पता नहीं पता चला जो अभी न्यूज़पेपर में चल रहा है 17 माला को ओसी नहीं है खाली कर दिया मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं उसके अंदर खाली कर दिया बाहर बैठे हुए सपना देख रहे ओसी आएगा देख रहे हैं कि नहीं पेपर में आया हुआ 24 तारीख को खाली हुआ सॉरी 27 तारीख को बिल्कुल पढ़ रहे सर लेकिन ये अगर आपने शुरू में आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट ले लिया होता जब विलिंगडन हाइट्स कंस्ट्रक्ट हुआ आपने अपॉइंट कर लिया होता मानो और उसने वो सैंक्शन प्लान सोसाइटी ने अपॉइंट करना चाहिए बिल्डर ने नहीं बिल्डर तो एज इट इज क्यों अपॉइंट करने लगा आपके लिए तो सोसाइटी ने अपॉइंट कर लिया उस समय सैंक्शन प्लान स्टडी किया तो आर्किटेक्ट बोलेगा भाई ये तो खाली 16 माले तक का ही उसी आया हुआ है बाकी क्यों रेगुलराइज करो इतना खर्चा उस समय खर्चा हो सकता था 20 वर्ष पहले आज तो लाखों रुपए तो ऐसे ही घुस गया तो रेगुलराइज हो सकता है सर वो लेकिन आज क्या हो गया जगह घर खाली करना पड़ा उधर जाने को अलाउड नहीं है पुलिस ने बंदोबस्त करके रख दिया हुआ है आपके फ्रिज के अंदर सामान पड़ा हुआ है सर आपका फंगस पकड़ रहा है सामान को तो ये सारी अवॉइड करने को छोटा सा पैसा खर्चा करके लीगल एडवाइजर इंटरनल ऑडिटर
ये अकाउंटेंट को क्यों रख रहे हो, उसको भी मत रखो ना, खुद ही करो, Exactly. है ना? अगर खुद ही कर लो उसमें क्या है? तो ये क्यों रखते हैं आप? अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। परेश शाह साहब, आप जिम जाते हो क्या? जिम सर कभी कभार जा लेते हैं सर, लेकिन मैं वॉक रेगुलरली लेता हूँ सर 20 साल से। अच्छा देखो, अगर मैं एक अंदाज लगाऊं तो संजीव शाह साहब आए हुए काफी दिनों के बाद आए हुए, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिम जाते हैं। अच्छा। शाह साहब आप क्या कहते हो संजीव जी? Yes, sir. मैं वर्कआउट करता हूँ सर, ठीक, एटलीस्ट एन आवर अ डे। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि अगर मैं एक फ्लैट बिल्डिंग देखने को जाऊंगा तो मैं उसका स्ट्रक्चर स्टडी करूंगा। राइट। अभी मैंने अगर आपका स्ट्रक्चर देखा, जितना भी दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई आपका बॉडी ऐसा ऐसा है, तो वो स्ट्रक्चर मजबूत होने के लिए कुछ कर किया होगा आपने। राइट। यस यस यस। सो व्हेन यू गो टू बाय अ फ्लैट नेक्स्ट, बैलेंस शीट देखो, डेफिनेटली। सैंक्शन प्लान देखो, बिल्डिंग का रूपरेखा देखो। अगर बिल्डिंग 40 बरस के ऊपर हो गई है तो बीएमसी में जाओ, बोलो कि भाई ये बिल्डिंग 40 बरस जूनी हो गई, इन्होंने कभी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट दिया होगा आपके पास, उसकी कॉपी दे दो, उसका आर्किटेक्ट का कंप्लायंस रिपोर्ट दे दो कि भाई ये स्ट्रक्चरल रिपेयर कर चुके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। Isn't it? Yeah. Anyway, thank you, Mr. Paresh, for Sir, I have a joining small in. comment to make here. Appreciate Yes, sir. it. Appreciate Yes, it. sir. Just not for buying a flat. I think when my daughter was supposed to get married, when I used to get alliances, I used to check their balance sheet online. And two alliances were rejected based on the balance sheet because they claimed to be crorepati's, but unki balance sheet was just about 5 lakh rupees. So either they were doing black money income or they were not actually rich. So I just a humorous comment here. Thank you. मेरा तजुर्बा ऐसा है कि मेजर बिजनेसमैन इन आवर कंट्री, मेजर, और ये मैं नहीं बोलता हूँ, कोई भी बैलेंस शीट उठा के देख लीजिएगा लिस्टेड कंपनी की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, और वो भी छोड़िए, एमसीए के वेबसाइट में जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, और गूगल सर्च करोगे तो आप देखोगे कि मेजर बिजनेसेस कर्ज में डूबे हुए हैं आज के दिन पे। राइट। और क्यों डूबे मालूम है? आपके कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस पे। परेश जी, आपको बताता हूँ मैं कि आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको इतना % इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट कम करते जाते हैं, और वो कम किया हुआ इंटरेस्ट का बेनिफिट किसको दे रहे हैं? वो कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, क्योंकि आप ही का तो पैसा लेके उनको दिया जा रहा है। और इतिहास गवाह है, इंटरनेट गवाह है, कितने लोग लेके भाग गए। यस राइट। यस सर, थैंक यू। तो कर्जे में डूबे तो सभी जने, जो जीरो डेप्ट कंपनी है वो बहुत कम मिलेगी आपको, बहुत कम मिलेगी। राइट, रेयर है। एनीवे, मिस्टर इस्माइल शेख, प्लीज टेक अप, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। शेख साहब, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सॉरी आपने सब सजेशन बहुत बढ़िया दिया सर, बट प्रैक्टिकलिटी पीएमसी को अप्रोच करना, यू एंड आई आल्सो नो हाउ मच दे आर कोऑपरेटिंग। द पिक्चर एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस के लिए हमारे बिल्डिंग का, यू टू रन फॉर 4 to 5 years। तो आप वो तो हम मेंबर जो ये पोजीशन की, नॉन मेंबर जो खरीदने जाएगा उसको बीएमसी कितना कोऑपरेशन देंगे सर? 30 years की बिल्डिंग है, 40 years का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए ऐसा लगता है तो आसानी से मिल जाएंगे। Sorry to say, sir. भाई, वी आर जनरल पीपल, ग्राउंड लेवल पीपल, या इवन सब ग्राउंड लेवल पीपल, जमीन के अंदर रहने वाले लोग हैं हम लोग। हम लोग की क्या हैसियत औकात है, मुझे बताइए। आपका क्या कोई सुनने वाला है और क्या कोई देखने वाला है? अभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने बोला रूल्स पारित कर, रूल्स देता हूं आपको, आपका सुझाव मंगाया, लोगों का सुझाव गया, अपने ग्रुप में से भी कई लोगों ने सुझाव भेजा और कॉपी भी डाली थी अपने फोरम के व्हाट्सएप ग्रुप्स में। हो गया 2-3 महीने हो गए उस चीज को, वो हर 2-2, 3-3 महीने में खबर आएगी, हाँ अभी बनने वाला है, तो वो चलता रहेगा सर, कोई बात नहीं, लाइफ जैसी है वैसे। कीप ऑन एडजस्टिंग। Keep on fighting. यस सर।
Okay, so now with the permission of all our friends, Thank you. we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Thank you, sir. Wishing Thank all you, sir. friends a healthy Thank and you. peaceful life forward. Thank you, sir. Thank you, Thank you. everybody. Thank you. Thank you, sir. Bye bye. Till Thank the you. next one. Appreciate it. Thank you.